ہے۔ ناظرین، اگست کا مہینہ یعنی کہ آزاد مطلب پاکستان کی آزادی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا، ایک ملک پاکستان صورت میں خوبصورت تحفہ ہمیں دیا۔ یہ وہ ملک ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اجداد ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی، اپنا گھر بارا، اپنی جانوں کا نہ پیش کیا، اپنی عزتیں وہ گنوائیں، اس کے بعد جو ہمیں یہ ملا۔ تو اگست کے مہینے میں کس طرح سے جو ہمارے اب کے لوگ ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، کس طرح سے ملک جو تاریخ ہے اس کو بتاتے ہیں، اور 14 اگست جس دن اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہمیں ایک نوید آئی کہ بھائی آج سے آپ لوگ آزاد ہیں، آج سے ایک پاکستان ایک جو کہ ایک ہے آپ لوگوں کو ایک دے دیا گیا۔ اس حوالے سے خاص تیاریاں جاری ہوتی ہیں، اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے مختلف شہروں سے نمائندے ہمارے ان سے بات کریں گے، لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ کس طرح سے اس وقت عروج پر ہے، کس طرح سے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، جوان، کیا عورتیں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جو 14 اگست کیسے وہ سٹالز لگائے گئے ہیں، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک جو بات ہے کہ جو 14 اگست ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی خاص طور پہ ضرورت ہے، اور بھی اس دور میں یہ پاکستان چاروں جانب مشکلات میں رہا ہوا ہے، جو سازشیں ہیں وہ پاکستان کو کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں۔ ان کی پوری کوششیں ہیں کہ آج سے اگر ہم دیکھیں 74 پہلے دیکھیں جو پاکستان سے بنا تھا، اس دن سے ان جو بیرونی قوتیں ان کی ایک پوری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پہلے تو وہ دینا ابھی اگر انہوں نے بھی دی ہے تو اس کو کسی نہ کسی سے ختم کرے، لیکن اس کے باوجود میں آج کے وقت کی خاص بات ہم اپنوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں ہمارے آباء و اجداد نے، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی ہماری عزتیں لوٹی گئی ہیں، یہ خاص طور پہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو آزادی کا دن ہے بہت جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے بازاروں کا رخ کرتے ہیں کہ بھائی اسی بہانے چیزیں بھی لے لیں گے اگست کو منانے کے لیے، جو ہمارا جشن ہے 14 اگست کا اس کو منانے کے لیے، اور جو تاریخ ہے وہ دوبارہ سے دہراتے ہیں تاکہ بچوں کے دماغ میں ہر وقت یہ رہے کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں کو ایک وطن ملا ہے جس میں آپ لوگ آزاد ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو قانون کے دائرے میں رہ کر، وہ ایسے نہیں ملا، وہ آپ کو بہت کوششوں کے بعد ملا ہے، وہ آپ کو بہت جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرنے کے بعد ملا ہے، وہ مصیبتیں جو ہمارے بزرگوں نے جھیلی، وہ مصیبتیں جو ہمارے ماؤں نے جھیلی، ہماری بہنوں نے جھیلی، ہمارے نوجوانوں نے جھیلی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تب کہیں جا کے ہمیں یہ آزادی کا تحفہ ملا۔ ناظرین، اس بار جو اگست کا مہینہ ہے، یہ اگست کا مہینہ اور محرم جو کہ اسلامی حوالے سے بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کنبے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، یہ وہ مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ ہے، اور جو عقیدت ہوتی ہے وہ بھی پورے عروج پر ہے، جو مناتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے جو پاکستان ہے اس میں اقلیتیں بھی رہتی ہیں، اور جو ہماری مذہب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سنی، شیعہ، تمام مذاہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں جو ہے وہ اہل شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس مہینے کو پورے طریقے سے مناتے ہیں، نواز رسول کو پرسہ دیتے ہیں، اور مجلس جلوس کا وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو محرم ہے وہ اگست کے مہینے میں آیا ہے، یعنی کہ جو ہمارا ایک آزادی کا مہینہ ہے اس مہینے میں آیا ہے۔ ادھر سے محرم کا بھی پہلا عشرہ ہے، اور اگست 14 اگست بھی بہت قریب ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے مختلف شہر ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، 14 اگست کے حوالے سے شاپنگ کی کیا صورتحال ہے، کہ کس طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں چیزیں لے رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ 14 اگست کو لے کے، خاص طور پہ محرم الحرام کو دیکھتے ہوئے کہ کیا صورتحال ہے، لوگ کس طرح سے اس کو لے رہے ہیں، سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور ہماری انتظامیہ کے کتنا فعال کردار ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مختلف شہروں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جی صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح اللہ کی چاہیے، اور
ووٹ تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن تنگ ہیں اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آگے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے. ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ 10 منٹ کے بعد جائیں گے، اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے. نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان نمرا اقبال. میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدمزاد، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہیں، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا. بات کریں گے ان ماؤں کے لختے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کی لت میں اپنے تمام تر ہمدرد کھو دیے. بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا، کیونکہ آپ، ہم اور سب ہیں آدمزاد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان. ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے. تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف این نیوز HD پر. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملتان شہر سے عائشہ، ہماری رپورٹر. ہمیں فیلڈ سے آگاہ کر رہی ہیں کہ کیا لوگوں کا جوش و جذبہ ہے، کس طرح سے وہ آزادی کی تیاریاں کر رہی ہیں اور اس حوالے سے کتنی سٹالز ہیں اور سٹالز پہ کیسا رش ہے. باوجود مہنگائی کے لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے چیزیں لینے کم کر دی ہیں. اور خاص طور پہ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں، اس سال کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا سال ہے جو کورونا کی وبا آئی ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے. تو ہم عائشہ سے بات کرتے ہیں اور عائشہ سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، لوگ کیسی تیاریاں کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، اپنے آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو عائشہ سے بات کرتے ہیں. جی عائشہ، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ملتان شہر میں، لوگ کس طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں اپنے آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ملتان میں اس وقت جو ہے جشن آزادی کی تیاریاں جو ہے وہ عروج پر ہیں، اور جو ہے مہنگائی اور لاک ڈاؤن کے باوجود دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے باہر آئی ہے اور جشن آزادی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف قسم کی چیزیں خرید کر جو اپنے وطن سے آزادی کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خاص طور پر جو جوان جو ہیں وہ بھی مختلف قسم کی اشیاء خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت جوش دکھائی دے رہے ہیں. اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے، اس تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، کیا مہنگائی کے باوجود بھی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے جی بالکل، مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے، اس کے باوجود جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، لوگ نئے شہروں کا رخ کیا ہوا ہے اور جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جشن آزادی کا سامان خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری یہاں پہ کچھ شہریوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ جو عید کا دن ہوتا ہے یہ اسی کی مناسبت سے جشن آزادی کا دن بھی منایا جاتا ہے، تو یہ عید کے دن سے کم نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی مہنگائی ہو، لیکن لوگوں کا جو جوش و روش ہے وہ عروج پر ہے اور لوگ شاپنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ میں عائشہ ہمیں یہ بھی آگاہ کیجیے گا
कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का जो पहला अशरा है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में लोगों का जो जोश और जज्बा है, क्या वो रिवायती है 14 अगस्त को लेके? क्योंकि मुहर्रम का महीना है, जो खास लोग होते हैं वो अकीदत रखते हैं, वो जो जितनी भी अपनी खुशियां होती हैं उनको थोड़ा कम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस हवाले से भी हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मुल्तान के शहरियों की। जी बिल्कुल जो हमारे तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजाद कश्मीर कोटली से मोहम्मद सलीम। जी सलीम साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे, लोग किस तरह से आजादी की तैयारियां कर रहे हैं और अपने आजादी का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कैसे जोश जज्बा है उनमें? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह कोटली कश्मीर में भी इस वक्त बच्चे बड़े और बूढ़े आजादी की तैयारी में मसरूफ हैं। अपनी बाइक गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के सभी झंडे को लहराया जा रहा है। लोगों ने घरों के ऊपर भी झंडे लगाए हुए हैं। बच्चों ने अपने चेहरे के ऊपर जगह सिक्योरिटी के इंतजाम चेक कर रहे हैं। सही हो गया। जी तो नाज़रीन, हमें आजाद कश्मीर कोटली से आगाह कर रहे थे मोहम्मद सलीम के वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से अपने जो आजादी का महीना है, आजादी का दिन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने अपने चेहरों पे पाकिस्तानी जो परचम है उसको बनवा लिया है और अपने नौजवान जो है अपनी बाइक्स को लेके बाहर निकले हुए और तैयारियां कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बाइक्स के हवाले से मैं अपने नाज़रीन से बल्कि अपने नौजवान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो महीना होता है, ये आजादी का महीना, उसको हम अल्लाह ने एक खास मकसद के लिए दी है। खास मकसद के साथ हमें अपनी जान को महफूज रखना है, अपने सबसे पहले अपने वतन के लिए, कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किलात में ढला हुआ है, पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किलात में गिरा हुआ है, पाकिस्तान को इस वक्त चारों जानिब मुश्किलात का सामना है। बहुत जरूरत है पाकिस्तान को अपने नौजवानों की। नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो हमारे नौजवानों को ये बात समझना चाहिए कि भाई जो आजादी का महीना हमें सबक देता है कि इस महीने में हमने आप अपने मुल्क का, आप अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बदरुद्दीन जैकबाबाद से। इनसे हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग जश्न आजादी के लिए किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और बाजारों में कैसा रश है और इस हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा बदर साहब। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जश्न आजादी के हवाले से बहुत सी तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। बाजारों में भी रश लगा हुआ है बैनर के हवाले से और बैनर वगैरह भी लगे हुए हैं। बड़े बूढ़े और बच्चे जो है वो भी अपनी खुशी में और आजादी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। जानिब के यहाँ पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी सख्त की गई है और इसी हवाले से 14 अगस्त का दिन मुहर्रमुल हराम का एहतराम करते हुए बहुत अकीदत से मनाया जाएगा। और दूसरी जानिब यहाँ पे कल SSP जैकबाबाद भी आए हुए थे, जो मरकज इमाम बारगाह के बानी है सैयद महबूब अली, उनसे उनकी मुलाकात हुई और सिक्योरिटी का यकीन जानी फुल करवाई। जी बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे थे जैकबाबाद से सैयद बदरुद्दीन साहब, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से लोग जो है वो मुहर्रमुल हराम का एहतराम करते हुए बड़ी अकीदत के साथ और जोश जज्बे के साथ अपने आजादी के दिन को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। नाज़रीन ने बहुत अच्छी बात कही कि
जो हमारा इस्लामी महीना है, हमारे तमाम जो इख्तलाफात हैं अपनी जगह, तमाम जो हमारे फिरके हैं वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे बात आती है हमारे वतन की, जहाँ पे बात आती है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की, वहाँ पे हम सब मुतहद हैं। वहाँ पे कोई सुन्नी नहीं, वहाँ पे कोई शिया नहीं, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी नहीं, वहाँ पे सब और सब सिर्फ मुसलमान और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। वो पाकिस्तान जो आजाद हुआ, एक आजाद हुआ एक इस्लाम के नाम पे, जो मुसलमानों के लिए सिर्फ बनाया गया, वो पाकिस्तान, और वहाँ पे सब मुतहद है, वहाँ पे कोई फिरका नहीं, वहाँ पे कोई हमारे इख्तलाफात नहीं। बड़ी अकीदत के साथ वो मुहर्रम के हवाले से भी तैयारियां कर रहे हैं, मुहर्रम को भी मना रहे हैं, और जिस तरह से वो 14 अगस्त है उसकी तैयारियां कर रहे हैं और उसको मनाने के लिए पूरे जोश जज्बे के साथ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब हम रुक करते हैं किसी और शहर का और जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और जो लोग हैं वो किस तरह से अपने आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं पाकपतन से मोहम्मद रिजवान अकरम साहब। इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से जो है आजादी की तैयारियां कर रहे हैं। जी रिजवान साहब बताइएगा कि लोगों का जो जोश और जज्बा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की, और बाजारों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग अपने आजादी के दिन को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आजादी के लिए पाकपतन में भी तैयारियां रोज पर हैं। साथ साथ आखिरी महल्ले में दाखिल होने बाजार सब्ज हलाली पत्तियों और चढ़ियों से सज गए हैं। बड़े बड़े मतलब कि जो भी बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे झंडियां लगा रहे हैं। अच्छा। झंडियों से काफी स्टाल लगे हुए हैं, लेकिन इस दफा कोरोना वायरस को की पेश नजर जो लहर है उनको मद्देनजर रखते हुए दुकानदार हजरात का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से काम में तेजी तो नहीं है, इसलिए वो जश्न आजादी मनाने के लिए अवाम के साथ साथ पुरजोश हैं। इफ्तार आने के लिए आए हुए जो शहरी हैं उनका कहना है कि न सिर्फ हम अपने घरों को बल्कि गली और मोहल्लों को भी सजाएंगे। इसी दिन मतलब कि पाकिस्तान की जो भी आजादी के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं। इस दफा तो इस 14 अगस्त में मुहर्रम आ गई है, जिसकी वजह से इस 14 अगस्त में हम गाने वगैरह यूज नहीं करेंगे, बीन बाजा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुहर्रम हराम है वो हमारे के लिए एक सियाह दिन है। जी ठीक, तो साथ में ये भी बताइएगा कि मुहर्रम अल हराम भी है और आजादी का जो दिन है वो भी करीब है, तो ये बताइएगा कि पाकपतन में इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और इंतजामिया का क्या किरदार है। जी मुल्क भर की तरफ पाकपतन में भी सिक्योरिटी का भरपूर बहुत इंतजाम है। 6 मुहर्रम और 7 मुहर्रम को बेस्ती दरवाजा खोलने का इजाजत दी है, वो भी वो लोग लगेंगे, वो लोग गुजरेंगे जो कि मतलब के उनके खास होंगे जो दूर दराज से आएंगे। ठीक पाकपतन से हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद अकरम, मोहम्मद रिजवान अकरम, वो हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकपतन में सिक्योरिटी के हवाले से और साथ में मुहर्रम अल हराम के हवाले से भी। तो नाजरीन, हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम आपको मुख्तलिफ और जो हमारे शहर है कराची से भी हम आपको आगाह करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त आजादी को मनाने के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से, साथ में कोरोना वायरस को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब हार जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एंड टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमाना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम ले
लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारी एंकर पर्सन हसीना कौसर। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। जी हसीना, बताइएगा कि लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं अपने आजादी के दिन को मनाने के लिए, क्योंकि जो कराची है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की जो एक रीढ़ की हड्डी की मान समझा जाता है। तो वहाँ के लोगों का क्या जोश और जज्बा है, किस तरह से अपने आजादी को मनाने के लिए, आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, और उनका जोश और जज्बा कैसा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची से। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खौफ व रात में मुब्तला थे, लेकिन जाहिर सी बात है 14 अगस्त हमारी आजादी का दिन है और हर साल की तरह लोग 14 अगस्त को बहुत ही शान शौकत से मना रहे हैं। यहाँ पे तैयारियां पूरे जोशो खरोश से है और लोग जो है जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए, बच्चों ने यहाँ पे अपनी झंडियों से लेकर गलियों को सजावट को लेकर स्टार्ट कर दिया है। बड़े से लेकर बच्चे तक अपनी सवारी, सारे लोग ऐसे जो महंगाई को लेकर परेशान थे। पहले भी हमने जो प्रोग्राम्स किए थे तो लोगों का कहना यही था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई की वजह से सूरत हाल थोड़ी सी बेकाबू हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है 14 अगस्त का मौका है, साथ में मुहर्रम अल हराम की भी तैयारियां हैं। तो इस हवाले से लोग ये कि थोड़े मामूली फर्क आया है, लेकिन लोग जो से जल्द के साथ इस वक्त बाजारों में मौजूद है। ठीक, साथ में मुहर्रम अल हराम भी है। तो इस हवाले से बताएगा कि 14 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए और साथ में मुहर्रम अल हराम को रखते हुए सिंध हुकूमत ने इस बार कैसे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है और कराची में खास तौर पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं मुहर्रम अल हराम को मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, कराची पुलिस मुहर्रम अल हराम और गैर मामूली सूरत हाल पर पुलिस को मददगार 115 पर लाजमी फौरी तौर पर इत्तला करें। बहुत शुक्रिया। कराची से हमें आगाह कर रही थी हसीना और वो बता रही थी कि इस बार किस तरह से लोग जो है वो आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है तैयारियां कर रहे हैं, और साथ में महंगाई का भी वो जिक्र कर रही थी कि पिछले जो हमारे आजादी का दिन आता था, अगस्त का महीना आता था, उसकी निस्बत इस बार थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे भी पाकिस्तानी अवाम है जहां पे बात आती है उनके अपने वतन की, जहां पे बात है। और इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी और साथ में बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी तो देखें कि साल में सिर्फ एक बार ही आता है अगस्त का महीना, और इसको किसी ईद से बढ़ के समझा जाता है क्योंकि इसमें हमें आजादी मिली, उस गुलामी से हमें आजादी मिली जिसमें हमें जलील किया जाता था, जिसमें हमारी जानें तक ली जाती थी, हमारी इज्जतें महफूज नहीं थी, उससे हमें आजादी मिली। तो इसको मनाने के लिए जो पाकिस्तानी अवाम है वो किसी भी चीज से दरेग नहीं करती। और नाज़रीन, हम इस वक्त रुख करते हैं राजनपुर का और वहां से जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और जो मुहर्रम अल हराम है उसको वहां तक पहुंची हैं। लेकिन जी मुहर्रम की वजह से जश्न आजादी की तैयारियां तो कुछ मान बढ़ गई हैं, उसके अलावा जो जज्बा जो है ना लोगों में खास तौर पे वो देखने के काबिल है। और मुहर्रम की वजह से सूरत हाल राजनपुर में शहर की सोगवार भी है और आजादार और दूसरे जो अहले इस्लाम है वो उन्होंने उसको अपना अदब और एहतराम से मुहर्रम को मनाने की तैयारी भी कर रखी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। राजनपुर से हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला खान गबोल साहब, वो हमें बता रहे थे कि इस्लाम को बचाने के लिए, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम पे बना और नवाज़ रसूल ने भी इसलिए जान दी कि इस्लाम जिंदा रहे, इस्लाम बाकी रहे। तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को किसी भी एक मामले में शिद्दत पसंद नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आजादी का महीना है, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए और मुहर्रम जो है उसका जो एहतराम है वो भी सब पे लाजिम है। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ अपने नुमाइंदों से बात की, मुख्तलिफ शहरों से, और आप लोगों को बताया और आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से वहाँ जो लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं अपने अगस्त के महीने को 14 अगस्त को लेके किस तरह सेलिब्रेट करने के लिए स्टॉल्स का रुख किया जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे लिए जा रहे हैं और